اس کے بعد یہ ہمارا جو اگلا ستارہ ہے زون اے کا کینسر یعنی کہ برج سرطان. اردو میں جن کے نام ہے سے یعنی انگلش میں ایچ جو ہوتا ہے ہنی والا اور اردو میں ہے ہو گئی ہاتھی والی یا حلوے والی جو ہوتی ہے, تو جس سے بھی آپ کا نام شروع ہوتا ہو یہ ستارہ آپ کے لیے روڈ میپ ڈیسائیڈ کرنے میں بالکل آپ کی مدد کرے گا. سب سے پہلے کینسیرینس تاریخوں کو ضرور نوٹ کر لیجیے گا. کہانی ہم شروع کریں گے جو شروع ہوتی ہے اس ہفتے کی 14th of April سے شروع ہوتی ہے اور 20th of April پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. کینسیرینس 14th, 15th اور 16th بچوں کی نیت سے جتنی آپ کی توفیق ہو آپ صدقہ دے دیجیے گا. رومانس ایریا میں بھی ذرا کیئرفل رہیے گا. دوستیوں کے معاملات میں بھی نہ انڈر ایسٹیمیٹ کسی کو کیجیے گا نہ اوور ایسٹیمیٹ کیجیے گا. تو یہ ذرا سی احتیاط ہے. یہ جو اپریل کی یہ جو 3 تاریخیں ہیں 17th اور 18th تھوڑا سا صحت پہ پریشر نظر آتا ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے ایک ہیلتھ ایریا پہ یا آپ کے اس میں ایک تھوڑا سا پریشر کی انڈیکیشن ہو رہی ہے ان تاریخوں میں. 17th اور 18th کی جو یہ 2 تاریخیں ہیں تو اس میں تھوڑا ہمیں یہاں پہ آپ کے لیے پریشر کی انڈیکیشن ہوتی ہے. 19th اور 20th گڈ ڈیٹس ہیں. آلدو کہ یہاں پہ ایک ستارے نے کام خراب کرنے کی بہت کوشش کی. آپ کے ریلیشن شپ ایریا, آپ کے ریلیشن شپ کو روئن کرنا ود ادرز, ود بزنس پارٹنر, ود لائف پارٹنر. یہ ستارہ جو ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی جو ہے اس کی جو پرابلم شروع ہوتی ہے ستارے کی, یہاں پہ یہ آیا تھا جی. اگر میں اس کو پیچھے آپ کو لے کے جاؤں 2024 میں بھی 2.5 ماہ کا قیام تھا اس کا, یعنی آلموسٹ اگست کے اینڈ پہ آیا اور 4th of November کو نکلا. تب بھی مجھے بہت وری تھی اپنے 12 ستاروں کی اور اسپیشلی میری کینسیرینز اس سے بہت افیکٹ ہو سکتے تھے. اس کے بعد کبھی میری علمی ہسٹری میں یقین جانیے ایسا نہیں ہوا کہ یہ پھر آتا ہے 5th of January 2025 کو الٹا چلتا ہوا تھا اور 25th of February تک کی کچھ بھی کر سکتا تھا. مطلب خطرناک حد تک اس کی پوزیشن تھی کہ یہ کچھ بھی کر سکتا تھا. دل تو چاہ رہا ہے کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو بھی میرا خیال ہے میں اپنی ٹیم سے عرض کروں گی کہ اس پہ کاپی رائٹس کا چکر نہ آئے. میرے ایک 1 لائنر کلپ میرے پاس ایک سیف ہے. یہ وہ برا ٹائم تھا دنیا کے لیے. ہوائی حادثات, فضائی حادثات, کینسیرینس کے تو تعلقات خراب کرا سکتا تھا, پھڈے, اینگر ایشوز تو جو ہے, لیکن اس نے ایگزٹ یہاں سے ابھی تک بھی نہیں لیا. اب اس ہفتے خوشخبری ہے اللہ کے حکم سے کہ 18th of April تک یہاں سے نکل رہا ہے. تو میرے جن کینسیرینس نے اپنے رشتوں کو بچا لیا, چاہے وہ رشتے آپ کے کاروباری تھے کینسیرینس یا آپ کی ازدواجی زندگی تھی, تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے کینسیرینس جو ہیں وہ سرخرو ہو گئے اپنے معاملات کے اندر جو ہے کہ آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بچا لیا. اس کے بعد میں آگے دیکھتی ہوں تو جو ایک جو میرے کینسیرین اسٹوڈنٹس ہیں, پھر ہمارے وہ کینسیرین جو کوئی ڈاکومنٹ ریلیٹڈ کاموں میں پھنسے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے یہ ٹائم ایسا تھا کہ ڈیلے پہ ڈیلے, تاریخ پہ تاریخ اور ہرڈلز یہ پیدا کرا سکتا تھا. اوورسیز ٹریول ہے, ڈاکومنٹ ہیں, میرے کینسیرین بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں. ایک ستارہ پھر ان میں سیدھا جا کے ہوتا ہے, اسٹریٹ ہوتا ہے 7th of April کو سیدھا ہو گیا تھا. دوسرا یہاں پہ سیدھا ہوتا ہے جا کے جی, اس کی تاریخ ہے اسٹریٹ ہونے کی, وہ تاریخ ہے جی کون سی 13 of April, 13th of April کو. تو اللہ کرے کہ ان معاملات میں آپ کو سکون ملے گا. اب آپ بالکل پرسوں کیجئے, میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے پڑھا بھی جائے گا, ڈاکومنٹ سے جو ریلیٹڈ کام ہے. اب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مایوسی نہیں ہوگی اور میرے جو ہے کینسیرینز ان کے رکے ہوئے کام اللہ کے حکم سے بالکل ہوں گے. اوورسیز ٹریول میں بھی ہچ نہیں آنی چاہیے.
इस वक्त सितारे जरा पीसफुल हुए हैं, अल्लाह करे कि ये आपके लिए और आसानियां पैदा करें। फिर एक सितारा 20th ऑफ मार्च से जो पॉजिटिवली कोशिश कर रहा था आपके कैरियर हाउस के लिए, जो है ना आपके कैरियर हाउस में आपके लिए जो बहुत ज्यादा इसकी कोशिश थी कि बेहतर बनाए, अल्लाह करे कुछ आप इससे फैज याब हुए हो, जो अपने जाती कारोबार में है या अपग्रेड होना चाहते थे जेमिनाइज अपने करियर में, तो ये 20th ऑफ मार्च से यहाँ बैठा हुआ आपके लिए पॉजिटिवली कोशिश कर रहा था कि मेरी कैंसरियंस के कामों को बेहतर करें। अभी भी आपके पास जो टाइम माशाल्लाह कैंसरियंस चल रहा है 10th ऑफ फरवरी से बहुत सॉलिड चल रहा है। और ये कहते हैं ना, ये जो ऑफर है ये महदूद मुद्दत के लिए है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत महदूद मुद्दत की ऑफर है। और जो है अभी भी दुआएं मांगिए, जितना अरब ताला से कनेक्ट कर सकते हैं, रूहानी दर्जात आपके बढ़ सकते हैं, रूहानी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टेन जो जर्क्स होते हैं, झटके, वो आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको हिला के भी जा सकते हैं। तो अगर आप बचना चाहते हो तो फिर इस वक्त जो है तवक्कल वाला वेपन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे कैंसरियंस आपको मैं शेर डेडिकेट करती हूँ, और ये शेर के जो क्रेडिट्स हैं वो जो मोमो वाले नबील हैं उन्होंने मुझे याद कराया इस शेर को। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर उस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। तो तवक्कल स्ट्रॉन्ग रखना इन दी एंड है मुकद्दर ही है, जो रब ने लिखा है। हजरत अली का फरमान है कि ना वक्त से पहले मिलता है ना नसीब से ज्यादा मिलता है। तो इस वक्त आप जो है ना सिर्फ अपनी रूहानियत को फोकस करें, वरना ये वो ऐसा टाइम होता है जो अलार्मिंग होता है कि कॉन्फिडेंस की ऐसी ऐसी फेर के जा सकता है। तो अगर आप मेरी बात को फॉलो अप करोगे तो इंशाल्लाह फायदे में रहोगे। और एक बात और, आपकी दुआएं क्योंकि कबूल बहुत होंगी, तो मेरा नाम आपने जो है वो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट लगाना है, क्योंकि देखिए कुछ तो क्रेडिट मिलना चाहिए। और मैं आपको वो रोशनी दिल चाहता है तारीफ बता दूं जहां से आपको लगना शुरू होगा कि जो रब से मांगा था ना वो ऐसे ही रब मुझे जमीन पे अता कर रहे हैं, कि जो मांगा था वही जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी एक सितारा जो है आपके ससुराली रिश्तेदारियां कैंसेरियंस या खानदानी रिश्तेदारियां, उनका इम्तिहान ले सकता है, तो उसमें भी केयरफुल रहिएगा। आप लेकर आ रहा है, डेट है जी 14th ऑफ अप्रैल से 20th ऑफ अप्रैल। अब सन की ट्रांजिट इस हफ्ते में 14th को है और आपके आ गया है 10th हाउस में। सच अ ब्यूटीफुल पोजीशन, और आपके लिए बहुत से प्लैनेट्स अभी भी 9th हाउस में हैं। सन की ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने जा रही है। यकीनन कोई नया काम, कोई पोजीशन, कोई डेजिग्नेशन, कोई रिकग्निशन, बहुत कुछ यहाँ पे आएगा। फेवर्स बिल्कुल आ सकती हैं। आप में से बहुत से लोगों को अपने घर के बड़े हों, बुजुर्ग हों, फादर साइड हो, बिल्कुल यहाँ से आएंगी। और ये इस तरह की पोजीशन होती है जहाँ पे चाहे वो आपके घर के बड़े हों, जिस तरह मैंने कहा फादर साइड भी हो सकती है, आपके इन लॉ साइड भी हो सकती है, ट्रैवलिंग भी यहाँ पे आपको आ सकती है। और अगर आप कोई ट्रैवल नहीं भी करते हैं तो कुछ लोग होते हैं अपने मुल्क में ही रहते हुए, अपनी जगह पे रहते हुए आपको कोई ऐसी ऑप्शन एज अ फ्रीलांसर भी आती है, आप कहीं दूसरे मुल्क में किसी और जगह पे कोई जॉब आपको ऑफर आती है, आप मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम कर सकते हैं, ऐसी कंपनी से भी काम कर सकते हैं। इट्स अ टाइम, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम जहाँ पे आपको मल्टीपल किस्म की ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा लगता है अगर आप अपनी कोई हायर एजुकेशन के लिए कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, आप किसी अपने वीज़ा पासपोर्ट के लिए कोई अप्लाई करना चाहते हैं। सो एज आई सेड कि ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइम है। अगर आप कोई एक से ज़्यादा पार्टनरशिप पे काम करें, वैसे ही कोई पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सिर्फ एक छोटा सा सजेशन है कैंसेरियंस आप लोगों के लिए, आप लोग कुछ भी करना चाहें,
कोई ख़ास तौर पे पार्टनरशिप हो, आप अपने नए पार्टनर की तलाश में हो, अपने नए हमसफ़र की तलाश में हो, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यहाँ पे आपने नहीं भूलना है, क्योंकि जहाँ पे आपको यहाँ पे नई पार्टनरशिप ऑफ़र आएंगी, नए पार्टनरशिप्स की बात हो रही है, वहाँ पे हम ये नहीं भूलेंगे कि मार्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि ऑलरेडी पार्टनरशिप, या अगर आप पार्टनरशिप में हैं, लाइफ पार्टनर के साथ है, तो उसको डिस्टर्ब भी करता है। आप इस वक्त बड़े बेचैन, इमोशनल, फटाफट फैसले, जज्बाती फैसले करेंगे। लिहाजा जो लोग ऑलरेडी शादी में हैं, रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे ये उसको थोड़ा सा डैमेज करता है और आप जल्दबाजी के फैसले लेंगे। तो उस चीज़ को हम इस तरह से अगर लें कि आपने जज्बाती फैसले नहीं करने हैं जहाँ पे रिश्ते ख़त्म होने की बात हो, रिश्ते टूटने की बात हो, क्योंकि ये एकदम से ना इंसान को अफरा तफरी में लेकर जाता है। मंगल है जनाब, मार्स है, मरीख है, तो ये एकदम से चीज़ों को ख़त्म करता है। प्लीज़ उस चीज़ को आपने कंसिडर करना है। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़त्म हो सकते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा हम्बल रहना है। और जब रिश्तों के ख़त्म होने की बात हो तो मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें। नहीं समझ में आता तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप पूछ सकते हैं। बहुत बार मैं इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, यस, किसी चीज़ की कंप्लीशन तो है यहाँ पे। आपको एक मामला, कोई सूरत हाल, कोई सिचुएशन कंप्लीट होगी, कोई नया सिलसिला यहाँ पे शुरू हो सकता है। अगर आप कोई प्रेगनेंसीज में हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और कोई पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर आप हैं, कोई पॉलिटिकल मामला है, आपका लगता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में है, या आप इस वक्त बड़ा पॉलिटिकली प्ले कर रहे हैं, मे बी आर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ, या इस वक्त आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे आप बड़ा टैक्टफुल पॉलिटिकली प्ले कर रहे हैं और उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं। यस, आपको इससे मिलेगा कुछ नहीं। सो आपको आपके सामने कोई नया विजन ज़रूर आया है और आप अपनी उस जो भी आप जिस भी शोबे में हैं, जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, नो डाउट, नो वंडर, आप बहुत बेहतरीन हैं, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर द मास्टर ऑफ दैट प्रोफेशन। अपने इस फील्ड में आप बहुत बेहतर हैं। आपका कंपैरिजन किया जा रहा है, या आप किसी दो सिचुएशन में आप खुद से कंपैरिजन करें। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, दो सूरत हाल है आपके पास, आप उसमें कोई